Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope each one of you, as always, are absolutely fine, hale, and hearty. We pray to the God to keep you absolutely safe, sound, and always in fine spirits, and at the same time, we pray also for your success. So now, in this particular session, we are going to take up, as you by now must have realized, that India's 110 is on the cards. Of course, India's 110 is corresponding to International Financial Reporting Standard 10. And of course, at the same time, it deals with consolidated financial statements. A very formidable chapter, a very significant chapter, needless to add. But the good thing about is that you have little bit of what we call knowledge, at least conceptual knowledge of consolidated financial statements. That's a different matter. That you did consolidated financial statement in your earlier phases of education in the light of existing accounting standard AS 21, 23, or 27. But now this particular chapter is needed to be done in the light and parameters of India's 110 corresponding to IFRS 10, as I just mentioned. So, even though it's a pretty long chapter, we cannot say there's tough. At the same time, there are some issues which definitely will require greater amount of attention. So, we take up what we call now the gauntlet and start the journey towards this particular chapter. It's a pretty long one, arduous journey is there. So, lots of practical questions we need to do to understand what and become efficient as far as preparation of consolidated financial statements is concerned. So, let's start this particular chapter now. India's 110 consolidated financial statement, as I just mentioned, और जैसे कि बेटे मैंने ये भी कहा कि जो इंड एएस 110 है, ये corresponding to इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 10 है. कोई भी ऐसा इंड एएस जो आईएफआरएस पर बेस्ड है, वो 100 की सीरीज में है. ये मैं कई बार कह भी चुका हूं. एनीवे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको कि तुम किसी जमाने में होल्डिंग कंपनीज भी कहते थे, और जैसे कि कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा, खासतौर से शुरुआती लम्हों में मैंने कहा कि इस चैप्टर की जो बेसिक कंसेप्चुअलिटीज है, अच्छी बात यह है कि तुम लोग उससे पहले से ही आगाह हो, क्योंकि इससे पहले तुमने ये चैप्टर AS 23, 27 और 21 के अंतर्गत करा भी हुआ है. अब जैसे कि मैंने ये भी कहा कि इस चैप्टर को अब हमें ऑफ कोर्स इंडिया से 110 के गाइडलाइंस का अनुरूप करना है. तो और मैंने ये भी कहा कि अब ये थोड़ा सा फॉर्मेडेबल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्सफुल चैप्टर है, तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा कि इसको टफ किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम इसको हमें लाइटली भी नहीं लेना है. लेट्स हैव ए लुक नाउ व्हाट एग्जैक्टली इंडियास 110 क्या है और इसके अंतर्गत हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनानी है. इंड एएस 110 की पहली गाइडलाइन क्या है? इंड एएस 110 की पहली गाइडलाइन ये है कि अगर आप एक एंटिटी हैं और आपकी कोई सब्सिडियरी है या आपकी सब्सिडियरीज हैं, तो आपके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना लाजमी है. इफ यू आर ए पेरेंट, ऑफ कोर्स आप पेरेंट तभी बन सकते हैं जब आपकी कोई सब्सिडियरी है, इजंट इट? यानी कि कोई एंटिटी अगर उसकी सब्सिडियरी है या सब्सिडियरीज हैं, तो तब उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी है. ये लीगल बाउंडेशन है. तो पहली गाइडलाइन को मैंने लिखना शुरू करा कि एवरी एंटिटी एवरी एंटिटी एवरी एंटिटी having every entity having subsidiary every entity having subsidiary or subsidiaries having subsidiary or subsidiaries, just wait, every entity having subsidiary or subsidiaries is required to prepare is required to prepare क्या? Consolidated financial statement is required to prepare
CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज का ध्यान रखें कि इस पूरे चैप्टर में जब मैं CFS लिखूंगा तो इसका मतलब दिस विल स्टैंड फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस विल नॉट स्टैंड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बात का ध्यान रखना है। तो जहां तक इस गाइडलाइन का सवाल है, इस गाइडलाइन का बेसिकली मतलब क्या निकला? लेट अस सी, सपोज देयर इज एन एंटिटी by the name of S1, correct? And there is another entity by the name of E1. इस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। दिस एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी और हैवी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। हम मान लेते हैं कि इस कंपनी की जितनी भी टोटल शेयर कैपिटल है उसका 70% स्टेक हमारे पास है, 70% हिस्सा हमारे पास है। जो कंपनी इन्वेस्ट करती है दूसरी एंटिटी में उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर एंटिटी। E1 विल बी कंसीडर्ड एज इन्वेस्टर। पहले तो टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इन्वेस्टर एंटिटी, द एंटिटी विच हैज इन्वेस्टेड। और जिस एंटिटी में इन्वेस्ट करा गया है उस एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टी एंटिटी। दिस एंटिटी विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टी एंटिटी। इन्वेस्टी एंटिटी, करेक्ट? Because E1 has invested very heavy amount, almost equal to 70% of the total stakes of S1. So S1 की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसका 70% से ज्यादा का हिस्सा या स्टेक्स अगर हमारे हाथ में है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि S1 is in our control, isn't it or not? इसका मतलब ये जो एंटिटी है ये हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये हो गया बिकॉज द अदर एंटिटी इज इन आवर कंट्रोल, तो इसलिए वी शैल बी टर्म्ड एज पेरेंट एंटिटी। हम क्या कहलाएंगे? पेरेंट एंटिटी। E1 will be considered as parent entity. I need not require to tell you, ये सारी चीजें आपको पता है लेकिन हम थोड़ा सा रिकैप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टी एंटिटी, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी एंटिटी। It will be known as subsidiary entity. So in this case, E1 is the parent and S1 is the subsidiary. Any entity, if it has subsidiary, then it will have to prepare the consolidated financial statements. Correct? Number one. Any entity having subsidiary or subsidiaries, हम मान लेते हैं कि जो S1 लिमिटेड है, S1 लिमिटेड ने भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। We have invested in S1 Limited and S1 Limited has also invested what we call entity. Let us say name of this entity in which S1 has invested. Correct? तो इस entity में S1 ने इन्वेस्टमेंट करी है। हम मान लेते हैं कि जो S2 है उसकी जितनी भी शेयर कैपिटल है उसकी 60% या उसका 60% स्टेक्स जो है वो S1 के हाथ में है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब ये हो गया कि अगर S1 ने 60% S2 की टोटल स्टेक्स को खरीदा हुआ है तो दैट मीन नाउ S1 has become investor and this entity will become investee. At the same time, S1 is also parent of S2. इसको ये कहा जा सकता है। इस केस में S1 now will become the parent. मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रहा हूं। पेरेंट, अगर S1 ने 60% स्टेक्स S2 के खरीदे हैं तो इसका मतलब S1 will now become parent and this company will become subsidiary. Correct? Now try to understand this. S1 is controlled by E2 and S2 is controlled by S1, and because S1 is our subsidiary, that means S2 is also our subsidiary. Are you getting my point or not? यानी कि ये जो पूरी रिलेशनशिप है हम क्या कहेंगे? दिस इज द पेरेंट एंटिटी, ये तो पेरेंट एंटिटी है। S1 इज द इमीडिएट सब्सिडियरी ऑफ E1 और S1 क्या है? हमारी इमीडिएट सब्सिडियरी है। एंड S2 इज आवर अल्टीमेट सब्सिडियरी।
तो ये पॉइंट क्या है कि अगर आप एक एंटिटी हैं और अगर आपकी कोई सब्सिडियरी है या आपकी सब्सिडियरीज हैं, इस केस में S1 एंड S2 बोथ विल बी कंसीडर्ड एज सब्सिडियरी ऑफ E1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब S1 और S2 दोनों सब्सिडियरीज, बोथ दीज कंपनीज विल बी कंसीडर्ड एज सब्सिडियरी ऑफ E1। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं एंड दिस एंटिटी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ S1, सो इनडायरेक्टली E1 is also controlling S2. That is why it is said कि अगर आप एक एंटिटी हैं और अगर आपकी कोई सब्सिडियरी है या सब्सिडियरीज हैं, so in that case you are required to prepare what we call consolidated balance sheet. This is the first and this is not very tough to understand. Correct? Now, अब इसकी जो दूसरी गाइडलाइन है, गाइडलाइन तो मैंने लिखी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा। दूसरी गाइडलाइंस क्या है? स्टैंडर्ड विल प्रोवाइड, ये स्टैंडर्ड क्या करता है? हमें कुछ प्रिंसिपल्स देता है। प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स। किस चीज के लिए प्रिंसिपल्स देता है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ consolidated financial statement. Next guideline is related to preparation of consolidated financial statement. लेकिन नेक्स्ट गाइडलाइन की अभी हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही है जिसको कि अभी हमने करना है। इनफैक्ट बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सीखना है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ कोर्स इन अकॉर्डेंस टू इंड AS 110। तो जाहिर है कि इस पॉइंट की चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, इसकी चर्चा मैंने कहा विस्तृत तरीके से हम बाद में करेंगे। स्टैंडर्ड का जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड का तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। This standard speaks about control. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर को समझने में बहुत मुश्किल होगी। लॉजिकली यू कैन बी पेरेंट, आप पेरेंट तभी हो सकते हैं जब दूसरी कंपनी का कंट्रोल आपके पास है। अब होता क्या था कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड था, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 21, 23 या 27, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में जो कंट्रोल की परिभाषा थी वो बहुत सीमित थी। इट वॉज वेरी नैरो। जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स थे उसमें कंट्रोल क्या माना जाता था कि अगर कोई कंपनी है और उसके 50% से ज्यादा शेयर हमारे हाथ में हैं, तो हम कहते थे कि उस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है। AS 21, 23 या 27 के मुताबिक यू कैन गेट द कंट्रोल ऑफ द आइदर एंटिटी ऑफ द अनदर एंटिटी अगर आपके पास उस कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर हैं या आपके पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का अधिकार है। ये तो है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में कंट्रोल की परिभाषा मैंने कहा बहुत सीमित थी, बहुत नैरो थी। लेकिन अब जो है इंड AS 110 में कंट्रोल की जो परिभाषा है वो थोड़ा सा मैंने कहा टिपिकल है और थोड़ा सा एक तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्धारित नहीं है कि अगर सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर आपके पास हैं तो आप दावे के साथ कह सकते हैं, कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल आपके पास है। इसका मतलब ये हो गया कि इंड AS में कंट्रोल किसी एंटिटी का आपके पास है, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उस कंपनी के 50% से ज्यादा के स्टेक्स आपके पास हैं। व्हाट एग्जैक्टली द कंट्रोल इज, तो कंट्रोल क्या है, ये परिभाषा जो है इंड AS 110 के मुताबिक क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं पहले लिखूं और फिर मैं आपको बताता हूं। करेक्ट? प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल इंड AS 110 के मुताबिक आपके पास कंट्रोल दूसरी एंटिटी का कब आएगा? अगर वन एंटिटी एंटिटी एक्सपोजेस एंटिटी एक्सपोजेस एंटिटी एक्सपोजेस itself to the variable returns, to the variable returns,
entity exposes itself to the variable returns. Second, और ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी कंट्रोल माना जाएगा. Entity is having entity is having a right entity is having a right over variable returns over variable returns over variable returns over variable returns. और मुझे अभी इसमें एक तीसरी चीज भी लिखनी है, लेकिन तीसरी चीज लिखने से पहले मैं जरा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. जस्ट वेट, मैं जरा एक रफ शीट पहले ले लूं. अब जैसे कि तुमने रियलाइज करा होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग्स मैं कर रहा हूं, इट इज नॉट फ्रॉम माय प्रोफेशनल स्टूडियो. Reason is very simple. These are corona times and we all are logged in. Correct? So it's a makeshift arrangement in my home itself. So that's the reason. The technique on technical aspect we might be lacking a way bit. करेक्ट, या हम कह सकते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट आपको उस तरीके का हासिल नहीं हो रहा होगा जिसको कि आप अधिकतर एक्लिमेटाइज हो चुके हैं. हाउएवर कंटेंट वाइज, जैसा कि मैंने कहा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कंटेंट में किसी भी तरीके की कमी ना हो. तो बात चल रही थी, ये रफ शीट है, आपको लिखना नहीं है. कंट्रोल के बारे में बात चल रही थी. मैंने कहा कि जहां तक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड का सवाल था, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कंट्रोल की परिभाषा बड़ी सिंपल सी थी. अगर कोई एंटिटी है और उस एंटिटी के 50% से ज्यादा शेयर हमारे पास हैं, तो हम मान के चलते थे कि वो एंटिटी हमारे कंट्रोल में है, हमारे अधिकार में है, हमारे अधीन है. ये तो था एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड. लेकिन अब नया जो स्टैंडर्ड है, इंड एएस 110, जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये जो परिभाषा लिखी है, एकदम से इसको समझना इतना आसान नहीं होता. लेकिन एट द सेम टाइम जो इंड एएस 110 है, बेसिकली उसका पर्पस क्या है, ये बताना कि कंट्रोल आपके पास सिर्फ और सिर्फ आया है. ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास मोर देन 50% स्टेक्स हैं. क्योंकि कंट्रोल की जो परिभाषा है, जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रोल की जो डेफिनेशन है, अब वो थोड़ी सी वृहत हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, विस्तृत हो गई है. कंट्रोल कब माना जाएगा? सपोज एक एंटिटी है ये, और इस एंटिटी में मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है. आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी. मैंने बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने कहा जिस एंटिटी में हम इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टी एंटिटी है, और मैंने इन्वेस्ट करा है तो मैं इन्वेस्टर हूं. अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, क्वाइट ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. जनरली हम लोग जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इन्वेस्टिंग? बिकॉज वी वांट टू हैव सम रिटर्न्स. Are you getting my point or not? No one is going to invest without what we call in the hope of getting the return. Everyone wished inside of their heart to have some returns from that particular entity. तो हमारे पास कुछ रिटर्न्स होंगे, ये सोच करके मैंने भी इन्वेस्ट करा. एट द सेम टाइम जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो जाहिर है कि जो रिटर्न्स होते हैं वो वेरिएबल होंगे. वेरिएबल क्यों होंगे? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टी एंटिटी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. अगर इन्वेस्टी एंटिटी ने हैवी प्रॉफिट्स कमाया है तो जाहिर है कि मेरे पास ज्यादा रिटर्न आएंगे, और अगर इसने कम प्रॉफिट कमाया या मेरी आशाओं के अनुरूप प्रॉफिट नहीं कमाया तो जाहिर है कि जो प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे मुझे कम मिलेगा. दैट इज व्हाई वी से वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब है कि जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी प्रॉक्सिमिटी में प्रॉफिट नहीं आ रहा. कभी वो ज्यादा आ सकता है और कभी कम आता है. इसका मतलब है कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इन द लाइट ऑफ इंड एएस, तो हम वहां से रिटर्न्स की आशा रखते हैं, नंबर वन. अब रिटर्न या तो हमारी आशाओं के अनुरूप हो सकता है या हमारी आशाओं के विपरीत भी हो सकता है. जब हम कहते हैं कि रिटर्न हमारी आशाओं के अनुरूप है, तो उस रिटर्न में ये माना जाता है कि हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, ये कंपनी मना नहीं कर सकती. लेकिन अगर रिटर्न हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं होगा, करेक्ट, जो मैं आशा कर रहा था कि उसके अनुरूप अगर प्रॉफिट नहीं होगा, जैसे कि मैं मान लो सोच रहा हूं कि मेरा 1 लाख रुपए का रिटर्न आएगा और रिटर्न आया सिर्फ 10,000 का, सो क्वाइट ऑब्वियसली इट इज बिलो द एक्सपेक्टेशंस.
तो उस केस में माना ये जाएगा कि आई एम एक्सपोजिंग टू द रिस्क। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत से लोगों की समझ में नहीं आते हैं। मैंने इसमें दो अल्फाज लिखे, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। इस शीट को मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने लिखा एंटिटी एक्सपोजेस इटसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न। एंटिटी एक्सपोजेस इटसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न का मतलब है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर है कि यू विल गेट सम रिटर्न्स, बट एट द सेम टाइम जो रिटर्न्स होंगे वो वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, वो वेरिएबल होंगे, वो फिक्स नहीं हो सकते। फिर मैंने लिखा कि एंटिटीज एक्सपोजिंग, एंटिटी इज, पहले तो मैंने सॉरी एक्सपोज लिखा है, पहले मैंने ये लिखा है एंटिटीज हैविंग ए राइट ओवर वेरिएबल रिटर्न। ये मैंने इसके बारे में आपको बताया। एंटिटीज हैविंग ए राइट ओवर वेरिएबल रिटर्न्स का मतलब है कि एंटिटी ने प्रॉफिट कमाया तो उसमें आपका राइट है। और इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि एंटिटी एक्सपोजेस इटसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न्स। एक्सपोज जो वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, पहले तो इस चीज को याद रखें, और बहुत से लोगों की समझ में इसका मीनिंग नहीं आता है। एंटिटी एक्सपोजेस इटसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न का मतलब है कि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो जाहिर है कि उसमें रिस्क है कि मेरी आशाओं के अनुरूप प्रॉफिट्स या रिटर्न्स नहीं आएंगे। जब प्रॉफिट्स या रिटर्न्स मेरी आशाओं के अनुरूप नहीं आएंगे तो दैट मीन आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू द रिस्क। That is why we use the term expose here. In both the cases, we will have the returns. But only thing is that in this case, जब हम कहते हैं entity is having a right, तो इसका मतलब है कि मान के चल रहे हैं कि returns are in accordance to our expectations. और जब हम कह रहे हैं कि we are exposing, तो इसका मतलब है कि returns तो आ रहे हैं, but perhaps those returns are below our expectations. तो जाहिर है कि जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, there is always a risk that returns will be according to our expectations and return may not be according to our expectation। तो इसीलिए हम ये दो वर्ड जो है यूज करते हैं, या स्टैंडर्ड जो है ये दो वर्ड एक्सपोज और राइट यूज करते हैं। एंटिटी exposes itself to the variable return का मतलब है कि you will get the return, but at the same time return is quite below than your expectation, so that is the risk and that is the रीजन यू आर एक्सपोजिंग। इसका मतलब आप एक रिस्क ले रहे हैं कि रिटर्न्स आपके एक्सपेक्टेशन के बिलो भी हो सकते हैं। एंटिटी इज हैविंग ए राइट ओवर वेरिएबल रिटर्न्स का इनडायरेक्टली मतलब है कि अगर एंटिटी ने प्रॉफिट कमाया तो ऑफ कोर्स उसमें आपका राइट है, सामने वाली एंटिटी आपको मना नहीं कर सकती। इसका मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि एंटिटी विल एक्सपोज इटसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न्स एंड एंटिटी विल हैव द राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स। लेकिन ये राइट हमारे पास आएगा कैसे, या हम कैसे एक्सपोज होंगे वेरिएबल रिटर्न्स के? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इन्वेस्टी, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इन्वेस्टी। इन्वेस्टी में भी हम इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स इन द इन्वेस्टी, ड्यू टू investments due to investments in the investee। यानी कि ये पहले दो पॉइंट का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टी you are putting up yourself in danger that you may not get the what we call return as per your expectation। इसको indirectly मतलब है कि we are exposing ourselves to such risk। एट द सेम टाइम इस पॉइंट का मतलब है कि जब हम एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टी एंटिटी में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट, एंड इफ दोस प्रॉफिट्स आर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव ए राइट इन दैट। इज इट क्लियर टू यू? तो पहला पॉइंट तो ये कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न्स because of your investment in the investee, and secondly at the same time you are having a right to return because of your investment in the investee। and third point क्या कहता है? has has the ability has the ability has the ability to influence has the ability to influence
the returns, has the ability to influence the returns on account of power, on account of power. अगर ये तीनों चीजें होंगी तो तभी ये माना जाएगा कि सामने वाली एंटिटी का जो अधिकार है, कंट्रोल है, वो आपके अंडर है। देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड। आपने महसूस करा और आपने देखा और एहसास करा कि इंड एस 110 में सिर्फ और सिर्फ इस बात पे स्ट्रेस नहीं करा गया है कि अगर आपके पास 50% से ज्यादा स्टेक्स हैं तो सामने वाली एंटिटी का अधिकार आपके पास है। करेक्ट? आपके पास किसी कंपनी का अधिकार कब आ सकता है? वन, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एंड एक्स, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी में करेंगे तो ये दो चीजें हो सकती हैं। आपको एक रिस्क है कि रिटर्न्स आपकी, जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ना हो, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो रिटर्न्स हैं वो आपकी आशाओं के अनुरूप हो, बट यू आर रेडी टू टेक व्हाट वी कॉल दीज थिंग्स। एट द सेम टाइम जब आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो आपके पास उस एंटिटी से होने वाले, हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द रिटर्न्स, उस एंटिटी से होने वाले रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। पावर कब आएगी, कैसे आएगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर ये चीजें होंगी तभी ये माना जाएगा कि आपके पास कंट्रोल है एज पर इंड एस 110। यानी कि इंड एस 110 में कंट्रोल की जो परिभाषा है वो सिर्फ स्टेक्स पर निर्धारित नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव मैटर पर निर्धारित है। ऑब्जेक्टिव मैटर ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यू शुड बी रेडी टू बेयर द रिस्क एंड हैव द राइट। एट द सेम टाइम आपके पास ये एबिलिटी है कि सामने वाली एंटिटी की, यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, सामने वाली एंटिटी को आप इन्फ्लुएंस कर सकें, उससे होने वाले रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। कैसे कर सके? बिकॉज यू हैव द पावर। और पावर का भी क्या मतलब है? पावर का मतलब है यू हैव द पावर टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज। उस कंपनी की जो भी मुख्य गतिविधियां हैं, मुख्य एक्टिविटीज हैं, उनको डायरेक्ट करने का अधिकार आपके पास जब होता है तो हम कहते हैं कि सामने वाली एंटिटी को इन्फ्लुएंस करने की पावर आपके पास है। मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। करेक्ट? तो इसमें मैं जरा शीट नंबर 1 लिख दूं क्योंकि मुझे बार बार शीट की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कहा कि घर से रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्रोफेशनल फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना मुझे भी पड़ता है। ठीक है ना? और नॉर्मली मुझे खड़े होकर पढ़ाने की आदत है और मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये एक दूसरी थोड़ी सी समस्या मेरे पास है। एनीवे, इंड एस 110 के मुताबिक, वेयर इज द पेन, इंड एस 110 के मुताबिक मैंने कहा कंट्रोल का मतलब थोड़ा क्लियर होना चाहिए। कंट्रोल बेसिकली, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत बेसिकली ये माना जाता है, जैसा कि मैंने कहा, कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है कि रिटर्न उसके पास कम आ सकता है। इसको हम कहते हैं ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द वेरिएबल रिटर्न, या ये माना जाता है कि ही हैज द राइट इन द वेरिएबल रिटर्न्स। उसका मतलब है कि जो रिटर्न्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आएंगे, जिसमें कि आपका अधिकार निश्चित है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। तीसरा, मैंने कहा कि आपके पास एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द रिटर्न। इन रिटर्न्स जो आपके पास आ रहे हैं इनको इन्फ्लुएंस करने की ताकत, पावर आपके पास है। अब मैंने कहा ये पावर का क्या मतलब है और पावर कैसे आएगी, तो लेट्स हैव ए लुक। थोड़ा सा अभी इसी पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पावर के बारे में चर्चा करी। पावर को मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास पावर कब आती है? एक तो आपके पास पावर है, इस बात का पता एक तो बहुत सीधे अंदाज में लग सकता है कि सपोज आप एक एंटिटी है P1 और एक एंटिटी है S1, और इस एंटिटी के 60% स्टेक्स, या चलो 80% स्टेक्स आपके पास हैं, तो जाहिर है कि यू हैव द पावर टू कंट्रोल ऑल द रेलिवेंट एक्टिविटीज। 80% स्टेक्स कोई छोटा स्टेक थोड़ी है। 80% स्टेक इस कंपनी की टोटल जितनी भी शेयर कैपिटल है, 80% आपके हाथ में है।
That means you are completely in control of this particular entity. Indirectly it means you have the power. तो आपके पास पावर है कि इस कंपनी की जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज हैं उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक तो पावर आपके पास है, इस बात का पता स्टेक से लग सकता है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, सपोज एक और एंटिटी है P2 लिमिटेड नाम की और S2 लिमिटेड नाम की एक एंटिटी है। P2 इन्वेस्टर है, S2 इन्वेस्टी है और P2 के पास लेट अस से 40% स्टेक्स हैं, 40% स्टेक्स हैं, करेक्ट? Remember one thing, even though you are having 40% stakes in S2 Limited, still you can participate in this entity. You can participate in the operational activity or in the financial matters of this particular entity. क्योंकि जनरली अगर किसी एंटिटी के 20% से ज्यादा स्टेक्स हमारे पास होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बिकॉज हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एटलीस्ट इफ वी कैन नॉट व्हाट वी कॉल कंट्रोल कंप्लीटली, बट एटलीस्ट वी कैन पार्टिसिपेट इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। हम उनके फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैटर्स में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं वी हैव 40% स्टेक्स, बट देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है एस लिमिटेड के साथ? एग्रीमेंट ये है कि P2 लिमिटेड will take care of all relevant activities, जो भी इस कंपनी की मेन मुख्य एक्टिविटीज हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस केस में भले ही मेरे पास 50% से कम स्टेक्स हैं, आई एम नॉट हैविंग व्हाट वी कॉल मोर देन 50% स्टेक्स, सो टेक्निकली ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंपनी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन देयर इज एन एग्रीमेंट विद दिस एंटिटी दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेलिवेंट एक्टिविटीज। आपकी जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज हैं उनकी केयर हम लेंगे, दैट मीन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज बिकॉज ऑल द रेलिवेंट एक्टिविटीज विल बी डायरेक्टेड बाय P2। तो हम कहेंगे इस केस में कि वी हैव द पावर। जब रेलिवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का अधिकार हमारे पास होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर है और इस पावर के जरिए हम S2 से होने वाले रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। इज लेट अस से थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं एक और एंटिटी है P3 and there is another entity S3 and P3 Limited has invested in 20% stakes। इस कंपनी के केवल 20% शेयर हमारे पास हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज एन एग्रीमेंट विद S3 लिमिटेड। एग्रीमेंट ये है, एग्रीमेंट ये है कि P3 will constitute board of directors of S3, will constitute board of directors of S3। तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे पास ये अधिकार है कि S3 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इफ वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनडायरेक्टली इट मींस वी आर कंट्रोलिंग देयर रेलेवेंट एक्टिविटीज। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज दैट द इन्वेस्टर इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ to the risk of not having the expected returns. You can say this way. Number two, investee is having a right in the variable returns of the investee entity. And third point is that the investor entity has the ability to influence all the relevant activities. अगर ये सारी चीजें होंगी तो तभी हम कहेंगे कि सामने वाली एंटिटी का कंट्रोल हमारे पास है। हालांकि इस पॉइंट को लेकर के हमने एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने करीब 10-15 सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो उन केस स्टडी के क्वेश्चंस में
आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपके पास कंट्रोल है या नहीं। तो जब हम उस सेक्शन पे आएंगे तो इनसे रिलेटेड हम कई केस स्टडीज भी करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंड एएस 110 के तहत कंट्रोल की जो डेफिनेशन है, मैंने कहा वो एकदम थोड़ी सी अलग किस्म की है। तो ये डेफिनेशन पे आपका पूरा कंट्रोल हो जाना चाहिए। शीट कहाँ गई है? वो शीट मैंने यहाँ पर रख दी जिससे पहले मैंने लिखा। तो ये जो डेफिनेशन है, शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल का बेसिकली मतलब क्या है कि as an investor, you are taking the risk. At the same time, you are having a returns. Of course, you are going to have the what we call share in the returns. Returns will be variable. लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास कैसे आएंगी? Because of the fact that you have invested in that particular entity. Correct? Number one. लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन दोनों के अलावा आपके पास ये एबिलिटी है कि आप उस एंटिटी की जो रेलिवेंट एक्टिविटीज है उनको डायरेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, तो मैं कहेंगे कि आपके पास पावर भी है। तो जब ये सारी चीजें होंगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए पावर भी लेके आ रही है और ये दोनों चीजें भी लेके आ रही है, देन इट विल बी सेड दैट यू आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ द अदर एंटिटी। करेक्ट? तो स्टैंडर्ड जो है, थोड़ा सा कंट्रोल की डेफिनेशन जो है इंड एएस 110 में, मैंने कहा इस तरीके की है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी अभी मैंने ये कहा कि आपके पास पावर तब आएगी व्हेन यू हैव द पावर, व्हेन यू हैव द एबिलिटी, सॉरी, पावर आपके पास तब आती है जब आपके पास एबिलिटी है कि आप उनकी रेलिवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकें। करेक्ट? मैं बता दूं कि पावर आपके पास तब आएगी, पावर का मतलब है कि एबिलिटी टू डायरेक्ट relevant activities relevant activities relevant activities। करेक्ट? और मैंने ये भी कहा कि इस चैप्टर में नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस ही हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलरली केस स्टडीज हैं। बाद में मैंने एक सेक्शन रखा हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि कंट्रोल को एसेस करना है उसमें। तो कंट्रोल को एसेस करने के लिए इन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। करीब 15 क्वेश्चंस हमने उसमें केस स्टडी के रखे हुए हैं। करेक्ट? अच्छा जी, उसके बाद स्टैंडर्ड। अब कितने पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, बार बार मैं भूल भी जाता हूँ मैंने कितने पॉइंट लिख लिए। लास्ट टाइम थर्ड पॉइंट पर मैं था। तो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत मैंने बताया कि कंट्रोल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। अब मैं फोर्थ पॉइंट पर आता हूँ। फोर्थ पॉइंट, गाइडलाइन। जब हम इंड एएस 110 की गाइडलाइन की चर्चा कर रहे हैं, तो जो फोर्थ पॉइंट है, स्टैंडर्ड ने ग्रुप के बारे में बताया। ग्रुप के बारे में क्या बताया? ग्रुप का मीनिंग सभी को मालूम है। एज पर इंड एएस 110, ग्रुप का मतलब है पेरेंट प्लस सब्सिडियरीज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी को मालूम है। पेरेंट प्लस सब्सिडियरी को हम मिला करके क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, उसके अलावा अब ये स्टैंडर्ड, जैसे कि हर स्टैंडर्ड करता है, हर स्टैंडर्ड में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश करी कि अगर आप एक एंटिटी हैं और आपकी अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है या आपकी सब्सिडियरीज हैं, तो आपके ऊपर एक बंधन है, एक दबाव है, एक प्रेशर है, एक मैंडेशन है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन सी एंटिटीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। लेकिन हर स्टैंडर्ड में कुछ अपवाद भी होते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में भी कुछ अपवाद हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने यही लिखा, एक्सेप्शंस। लेकिन इन एक्सेप्शंस को समझना, एक्सेप्शंस का मतलब ही होता है अपवाद। इसका मतलब है कि इन एंटिटीज को, जिनकी कि मैं अब चर्चा करूंगा, इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी नहीं है, भले ही ये पेरेंट एंटिटी। लेट अस सी ऐसा कब होता है, और इसको जरा ध्यान से समझें। ये जो एक्सेप्शन है, मैं जानबूझ करके इस शीट में लिख देता हूं, ये शीट में इधर रख देता हूं। करेक्ट? और ये मेरी शीट नंबर 3 है। अब मैं शीट का नंबर इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे बार बार शीट को रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। करेक्ट? तो मैंने तो नंबरिंग लिख ली, आपको लिखनी है तो आप भी लिख लेना। अब थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्या करें? आइए जी,
मैंने कहा मैं अपवाद के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इतनी खतरनाक किस्म की अपवाद है कि अगर मैं पहले आपको लिखा दूंगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेट्स हैव अ लुक। तो इसलिए बेटर है कि मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं। मान लेते हैं कि पी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। चलो पी वन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, करेक्ट। जाहिर है कि मैंने पी वन लिखा तो मेरा मतलब है कि ये पेरेंट है, फिर भी मैं लिख देता हूं ये एक पेरेंट एंटिटी है। दिस इज ए पेरेंट एंटिटी। इस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है एस वन लिमिटेड में, और एस वन लिमिटेड के 70% स्टेक्स हम मान के चल लेते हैं कि हमारे हाथ में है। जाहिर है कि एस वन हमारी सब्सिडियरी एंटिटी है, करेक्ट। उसके अलावा हम जो पेरेंट एंटिटी है, मार्केट में एक और एंटिटी है, करेक्ट। मार्केट में एक और एंटिटी है और इस एंटिटी का नाम है, मान लेते हैं, क्यू वन लिमिटेड। क्यू वन लिमिटेड, हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा है और क्यू वन लिमिटेड ने हमारे में इन्वेस्ट करा हुआ है। क्यू वन लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन पी वन ऑल्सो। अब क्यू वन लिमिटेड के पास मान लेते हैं कि 55% स्टेक्स हैं, यानी कि पी वन लिमिटेड की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसका 55% स्टेक्स क्यू वन के पास है। अब ध्यान इस बात को भी आपको देना है, मान लो होगा क्या, जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे उसमें तो कंट्रोल आपके पास है या नहीं, इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन का ताल्लुक ही इस बात से होगा ये पता करना कि आपके पास कंट्रोल है या नहीं। तो उसमें जाहिर है कि आपको वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। और कुछ क्वेश्चंस और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके यही हैं जिनको तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बोलते हो, जिसमें कि आपको बैलेंस शीट्स दी होंगी और आपको कहा जाएगा कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चन में आप कैसे पता करेंगे कि सामने वाली एंटिटी का कंट्रोल आपके पास है या नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेक्स की बदौलत ये पता करेंगे कि आपके पास कंट्रोल है या नहीं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यानी कि जो प्रैक्टिकल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, तो उन क्वेश्चन में तो मुश्किल नहीं होगा ये पता करना कि कंट्रोल हमारे पास है या नहीं। उसमें हम सिर्फ स्टेक्स को देख करके ये पता कर लेंगे कि हमारे पास कंट्रोल है या नहीं। अगर 50% से ज्यादा स्टेक्स हमारे पास होंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाली कंपनी का कंट्रोल हमारे पास है, क्योंकि मैंने कहा कि इन क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें यही इंफॉर्मेशन होगी। उसके अलावा जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे उसमें वो तुम्हें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसमें आपको उन डेफिनेशंस का यूज करना पड़ेगा जो इससे पहले पॉइंट पे मैंने बताया। खैर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम केस स्टडी के क्वेश्चंस में पहुंचेंगे तो तब उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी एंटिटीज हैं जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी है बावजूद इसके कि वो पेरेंट एंटिटी है। मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट करा कि पी वन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है एस वन लिमिटेड, क्योंकि पी वन लिमिटेड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इस कंपनी के 70% स्टेक्स हमारे पास हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब की बार हम पेरेंट के साथ साथ सब्सिडियरी भी हैं, क्योंकि हमारी जो शेयर कैपिटल है उसका 55% क्यू वन लिमिटेड के पास है। इसका मतलब क्यू वन इज कंट्रोलिंग अस। सो इसको यह भी कहा जाएगा कि क्यू वन इज द पेरेंट ऑफ पी वन। यानी कि अगर मैं एक पेरेंट एंटिटी हूं क्योंकि मेरी कोई सब्सिडियरी है, लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट एंटिटी के साथ साथ अगर मैं एक सब्सिडियरी कंपनी हूं, चाहे मैं पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी हूं, पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी, पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी, चाहे मैं एक पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी हूं या फिर मैं होली ओन्ड सब्सिडियरी हूं। सपोज क्यू वन लिमिटेड ने अगर मेरे 100% शेयर खरीदे होते तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ये कहते कि पी वन लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ क्यू वन लिमिटेड। तो अगर हम यानी कि पेरेंट पेरेंट इज आइदर ए पार्शियली ओन्ड सब्सिडियरी और होली ओन्ड और होली ओन्ड
subsidiary, wholly owned subsidiary, करेक्ट। यानी कि अगर आप एक पेरेंट एंटिटी हैं, आपकी एक सब्सिडियरी है, लेकिन उसके अलावा आप खुद एक सब्सिडियरी हैं, चाहे आप पार्शियली ओन्ड सब्सिडियरी हो, चाहे आप होली ओन्ड सब्सिडियरी हो, और आप ये डिसाइड करते हैं पेरेंट होने के नाते, आप पेरेंट एंटिटी हैं और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस साल हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, करेक्ट। लेकिन मैंने कहा आप पेरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने की इजाजत तब मिलेगी अगर आप पेरेंट तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप खुद एक सब्सिडियरी कंपनी भी हैं और आप डिसाइड करते हैं, P1 decides, P1 decides नॉट टू प्रिपेयर CFS। आपने डिसाइड करा कि हम अब की बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, decides not to prepare consolidated financial statement, and at the same time, and आपने ये कहा, आपका मतलब P1 से, P1 decides not to prepare the consolidated financial statement, और आपके जो ओनर्स हैं, P1 लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स ऑफ P1 लिमिटेड, ओनर्स ऑफ P1 लिमिटेड, जो ओनर्स ऑफ P1 लिमिटेड हैं, चाहे उनके पास वोटिंग राइट्स हो या ना हो, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, वेदर हैविंग वोटिंग राइट्स और नॉट, चाहे इनके पास वोटिंग राइट्स हो या ना हो, वेदर हैविंग वोटिंग राइट्स, वी आर वोटिंग राइट्स और नॉट, वेदर हैविंग वोटिंग राइट्स और नॉट, P1 ने कहा कि हम इस बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे। P1 लिमिटेड के जो ओनर्स हैं, चाहे जैसा कि मैंने कहा, चाहे उनके पास वोटिंग राइट्स हो या ना हो, इन ओनर्स ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि उनको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। ओनर्स आर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, ओनर्स नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, ओनर्स ने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब एज ए पेरेंट you need not require to what we call prepare consolidated financial statement। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है अगर नंबर वन, पहले तो आप पेरेंट हैं बिकॉज आपकी एक सब्सिडियरी है, एट द सेम टाइम आप एक सब्सिडियरी भी हैं, चाहे आप पार्शियली ओन्ड हो, चाहे आप होली ओन्ड हो, और तब आप डिसाइड करें कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी है। उसके अलावा जो आपके ओनर्स हैं, चाहे वो वोटिंग राइट्स उनके पास हो या ना हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उन्होंने किसी तरीके का प्रतिरोध या प्रोटेस्ट नहीं करा। और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, और एंड जो ये P1 लिमिटेड है, करेक्ट, इट्स डेट्स, P1 लिमिटेड के जो डेट्स हैं, डेट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर का मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, डेट्स या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो P1 लिमिटेड के जो डेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं आर नॉट बीइंग ट्रेडेड पब्लिकली, नॉट बीइंग ट्रेडेड पब्लिकली। मैंने कहा ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली लिखा देता तो आप कभी भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन अब आपकी समझ में आएगा कि किन एंटिटीज को ये एक्सेप्शन हासिल है। आप एक पेरेंट हैं, आपकी सब्सिडियरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक सब्सिडियरी भी हैं क्योंकि आपकी भी एक पेरेंट है। आपने डिसाइड करा हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, आपके ओनर्स ने उस पर कोई एतराज नहीं करा, और उसके अलावा
आपके जो डेट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पब्लिकली ट्रेड नहीं करे जाते, यानी कि किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। करेक्ट। एंड अभी एक और एंड है। एंड ये जो पी लिमिटेड है, पी वन लिमिटेड्स पी वन लिमिटेड्स इमीडिएट और अल्टीमेट पेरेंट P Limited's immediate or ultimate parent prepares financial statements. Prepares financial statements, in fact, consolidated financial statements, and these statements are being prepared in the light of Ind AS 110. और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंड AS 110 के हिसाब से हैं। करेक्ट। एंड अवेलेबल पब्लिकली, और ये पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल। टफ पार्ट है, जब टफ पार्ट होता है उसको करने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए, कराने की हिम्मत भी चाहिए। अब आपसे पूछे कि कौन सी एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किनको बनाने की आवश्यकता है ये तो सभी बता देंगे। तो कौन सी एंटिटी है जिसको बनाने की आवश्यकता नहीं है? तो नाउ यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर द आंसर। तो अब आप ऐसे बताएंगे कि कोई भी ऐसा पेरेंट जो अपने आप में जिसकी एक सब्सिडियरी भी है, लेकिन वो पेरेंट अपने आप में खुद एक सब्सिडियरी भी है, चाहे वो पार्शियली ओन्ड हो चाहे होली ओन्ड हो। ऐसे में पेरेंट अगर ये डिसाइड करे कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं और उनके अपने शेयर होल्डर्स इस पर कोई एतराज नहीं करते हैं, और इस पेरेंट के P1 के डेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिकली ट्रेड नहीं होते हैं, और ये जो पेरेंट है P1, इसका जो इमीडिएट पेरेंट है Q1 will also be termed as immediate parent of P1। ये इसका इमीडिएट पेरेंट हो सकता है। करेक्ट। या इसका कोई अल्टीमेट पेरेंट भी हो सकता है। सपोज मैं कहता हूं मार्केट में एक और कंपनी है और इस कंपनी ने इसमें और इसमें भी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उस केस में P1 का ये तो इमीडिएट पेरेंट है और ये कंपनी अल्टीमेट पेरेंट माना जाएगा। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि पी लिमिटेड के डेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम P1 की जो इमीडिएट पेरेंट कंपनी है या उसकी भी कोई पहली पेरेंट कंपनी है, लेकिन अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इन द लाइट ऑफ इंड AS 110 और जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो तब तब ये एक्सेप्शन अवेलेबल है। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। मैंने कहा ना कि अगर इसको मैं पहले लिखा देता तो यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड द सेम, लेकिन अब आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए। तो एक्सेप्शन कब हो सकती है, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं कि एक P1 लिमिटेड नाम की कंपनी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पेरेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये खुद अपने आप में एक सब्सिडियरी कंपनी भी है। इस पेरेंट ने डिसाइड करा कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनको ये एक्सेप्शन हासिल है, ये नहीं बना सकते हैं, लेकिन कब? अगर इनके शेयर होल्डर इस बात पे कोई प्रतिरोध नहीं करते, कोई एतराज नहीं करते, इस कंपनी के डेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मार्केट में पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इस कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है और वो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 110 के तहत बनाती है और वो पब्लिकली अगर अवेलेबल है, तो तब हम कहेंगे कि इसको ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन जो है, एक तो मैंने ये बताई, एक तो ये एक्सेप्शन है, और एक और एक्सेप्शन है, उसके लिए मुझे दूसरी शीट की जरूरत पड़ेगी, और ये है शीट नंबर 5। ये लास्ट शीट नंबर 5 थी, तो ये शीट नंबर 6 लिख देता हूं मैं। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? एक तो मैंने अभी ये बताई, और दूसरी एक्सेप्शन है कि इफ एन एंटिटी if an entity happens to be if an entity happens to be if an entity happens to be अगर कोई एंटिटी है, if an entity happens to be an investment entity an
इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी यानी कि लॉजिकली कोई भी ऐसी एंटिटी अगर वो पेरेंट एंटिटी है तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी है। लेकिन अगर आप एक पेरेंट हैं लेकिन आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है, हालांकि इसकी चर्चा बाद में हम बहुत डीपली करेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी इनिशियल सेशन में मैंने ये बताया कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसका पर्पस है सिर्फ हम कैश कलेक्ट करें और उसको हम आगे इन्वेस्ट करें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या कुछ रिटर्न्स के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी कहते हैं। तो अगर कोई पेरेंट है और उसकी कोई अगर वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इन दैट केस इट नीड नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अपवाद कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों अपवादों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये तो मैंने अभी एक थोड़ा सा इनिशियल ओवरव्यू लिया। नेक्स्ट सेशन में जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो हम उसमें अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे आएंगे। शुरू में मैंने कहा था एक पॉइंट प्रिंसिपल्स, करेक्ट, प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कहा था इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट वी कॉल प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अपने आप में ये पूरा चैप्टर है, यानी कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीखना है। दैट वी विल ऑफ कोर्स स्टार्ट डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो ठीक है, इस सेशन में फिर इतना काफी है, मैं अब इसको स्विच ऑफ कर